السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انٹرویو کے بارے میں۔ انٹرویو کی اقسام کون کون سی ہیں، اور انٹرویو دیا کیسے جاتا ہے، اور انٹرویو لیا کیسے جاتا ہے، اور انٹرویو میں کس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ممکنہ طور پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ انٹرویو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ انٹرویو کا مطلب ہے خیالات یا رائے، کسی کی آراء یا کسی کا نقطہ نظر، یا نقطہ نظر کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا اپنی آراء کا، اپنے نظریات کا، تو یہ انٹرویو کہلاتا ہے۔ انٹرویو جو ہے یہ تقریباً تمام امتحانات اور ملازمتوں اور دیگر جو کسی ملازم کو یا کسی شخص کو اپنے پاس کسی کمپنی، کسی ادارے، کسی محکمے میں ہائر کرنے کے لیے جو انٹرویو ہوتا ہے یہ تقریباً مشترکہ ہوتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ امیدوار کی صلاحیت کو ماپنا، جانچنا۔ اس کا یعنی انٹرویو کا بنیادی مقصد جو ہے وہ امیدوار کی صلاحیت، قابلیت، ذہنی میلان اور کسی بات کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، جو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا طریقہ کار جو ہے، اس طریقہ کار کو جانچنے کا نام بھی انٹرویو کہلاتا ہے۔ اسی طرح گفتگو کا اسلوب کیا ہے اس کا، یہ جاننا بھی انٹرویو کہلاتا ہے کہ اس کے گفتگو کے اسلوب کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن، تعلیمی چیزوں کا جائزہ لے کر جو ہے وہ ایک حتمی رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ شخص اس ملازمت کے لیے یا اس جو پوسٹ ہے اس کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ محکمے اور ادارے جو ہیں وہ قابل اور باصلاحیت امیدواروں کے چناؤ کے لیے جو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک اختیار یہ انٹرویو بھی ہے کہ ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو لے کر کسی قابل شخص کی صلاحیت کو جانچتے ہیں، پھر اس جانچ کی بنیاد پر وہ سلیکشن کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ شخص ہمارے پاس اس پوسٹ کے لیے یا اس ملازمت کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرویو کی اقسام پر۔ انٹرویو کے اندر بھی کچھ قسمیں بنائی گئی ہیں کہ کس طرح کا انٹرویو جو ہے، لیکن یہ تمام اقسام جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو انٹرویو کی ویسے تو متعدد اقسام ہیں جن کی تکنیک اور ساخت کے مطابق درجہ بندی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ اہم جو ہے وہ میں صرف یہاں ذکر کروں گا۔ منصوبہ بند انٹرویو سب سے پہلی قسم۔ منصوبہ بند انٹرویو کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے والا پہلے سے ہی موضوع کے مطابق جو سوالات ہوتے ہیں اس کا ایک خاکہ اپنے پاس تیار کرتا ہے، اور اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں امیدوار سے، ان سوالات کے جوابات جو امیدوار دیتا ہے ان کو تحریری طور پر وہ انٹرویور جو ہوتا ہے، پوچھنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے پاس ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے، اور انٹرویو لینے والا اپنے تجربے کی بدولت امیدوار کے تمام رجحانات اور ذہنی معلومات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، یہ منصوبہ بند انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں کن چیزوں پر غور کیا جاتا ہے، کن مضامین پر، اور کہ انٹرویو دینے والے شخص کی کن صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے۔ اس میں گھریلو زندگی، تعلیم، سابقہ کام جو وہ کرتا رہا ہے امیدوار، یا کام کا جو تجربہ ہے اس کے بارے میں، اسی طرح سماجی رویہ اس کا کیا ہے، تفریحی دلچسپیاں کیا ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ جاننے کے لیے، یہ جاننے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امیدوار کھل کر بات کرے اور اس کی بات چیت اور گفتگو کا انداز اچھی طرح معلوم ہو سکے۔
अच्छा, ऐसा इंटरव्यू लेने वाला जो मुकम्मल जायज़ा लेकर उम्मीदवार की मुलाज़मत के सिलसिले में कामयाबी या नाकामी की जो रिज़ल्ट तैयार करता है, जो निशानदही करता है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जैसे इंटरव्यू लेने वाला जो उम्मीदवार से ये भी पूछ लेता है कि आप किस नौइयत का काम करना पसंद करते हैं या किस सब्जेक्ट में आपको अबूर हासिल है। फिर वो जो बात पूछता है उसी सब्जेक्ट के हवाले से फिर वो ज़्यादा सवालात उससे पूछे जाते हैं। ऐसे ही उसमें वो फिर ये भी पूछ लेते कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए इसमें, और इसमें तरक्की के मौक़े आपको कब-कब चाहिए, या कितना अरसा आप इस पोस्ट पर काम करना चाहेंगे। तो इस तरह के सवालात जो होते हैं, ये पहले से मनसूबा बंदी के साथ इंटरव्यूअर जो है वो अपने पास लिख कर आता है, और फिर वो इंटरव्यू देने वाला जो है वो वही सवालात उनसे दोहराता है। दूसरी किस्म है इसमें इंटरव्यू की, वज़ा करदा इंटरव्यू। ये वज़ा करदा इंटरव्यू किसे कहते हैं? ऐसे इंटरव्यू को कहते हैं जो इंतहाई जामे सवालनामा की बुनियादों पर किया जाता है। उस इंटरव्यू की मदद से जो नताइज हासिल होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले की बहुत ज़्यादा एहतियाती तरबियत और ठोस इंतखाबी तरीक़ाकार जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। यानी उसमें खुलकर बात करने की बात नहीं होती, सिर्फ़ उसमें मौज़ू के मुतालिक जो होते हैं, तालीम और क्वालिफ़िकेशन के मुतालिक वज़ा करदा इंटरव्यू में सवालात होते हैं, और संजीदगी के साथ सवालात किए जाते हैं। उसमें इंटरव्यू लेने वाला या इंटरव्यू देने वाला खुलकर बातचीत या मुस्कुरा कर बातचीत नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ़ उसकी अहलियत को, तालीमी क्वालिफ़िकेशन को, तालीमी और काम जो जिस काम के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस काम के बारे में सिर्फ़ उससे जो है सवालात किए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू को वज़ा करदा इंटरव्यू कहते हैं। और तीसरी किस्म जो है, तीसरी चीज़ जो है वो है ताकीदी इंटरव्यू। ताकीदी इंटरव्यू का तरीक़ाकार जो है ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान खुफ़िया आमिल मुंतखब किए गए थे। ये हम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमरीकी हुकूमत ने ये तरीक़ा वज़ा किया था। उसमें खुफ़िया काम करने वाले जो थे, वो मुंतखब किए गए थे। इस इंटरव्यू का जो तरीक़ाकार है, इसमें इंटरव्यू लेने वाला दुश्मन के किरदार को फ़र्ज़ करके उन्हें मुदाफ़ियत और दानिस्ता तौर पर तंग करने, परेशान करने या मायूस करने के लिए इंटरव्यू के अंदर सवालात किए जाते हैं। यानी उम्मीदवार जो होता है, गोया ये उसका ऐसे तरीके पर इंटरव्यू होता है, उसे कभी गुस्सा दिलाया जाता है, उसे यानी डाँटा जाता है इंटरव्यू के दौरान। यानी जानबूझकर उसे तंग किया जाता है कि उसके मिज़ाज और उसके सलूक का इल्म हो सके, क्योंकि उसने खुफ़िया काम करने होते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू को ताकीदी इंटरव्यू कहा जाता है। इस इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि ऐसे लोगों की तलाश करना जो अपने रवैये और अपने जो किरदार है, जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है, उसके ऊपर वो काबू रख सकें। वो जज़्बाती ना हो जाएँ। उनको कोशिश की जाती है कि इंटरव्यू के दौरान जज़्बाती किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, या खुशी की कोई ऐसी बात बतलाई जाए जिससे वो खुश होकर अपना कोई ऐसा राज़ बता दें जो इंटरव्यू के दौरान उनके लिए ना बताना ज़्यादा बेहतर हो। तो ये तरीक़ाकार ज़्यादातर जो है तरबियत याफ़्ता जो अशख़ास मुंतख़ब किए जाते हैं किसी इदारे के अंदर, तो उसमें ये तरीक़ाकार ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में जो तरीक़ाकार जो सबसे अहम है, जो पीपीएससी के अंदर जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, वो है पैनल इंटरव्यू। इसमें एक इंटरव्यू लेने वाले का पैनल होता है। वैसे तो ये जो पीछे तरीक़ाकार बताए गए हैं, ये वज़ाहत के लिए मैंने बताए हैं। इसमें ये होता है कि हमारे जो इसमें इंटरव्यू होता है, पीपीएससी का इंटरव्यू, इसमें ये तीनों तरीकों के मुख्तलिफ सवालात यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कभी आपको यानी मनसूबाबंद इंटरव्यू वाला सवाल भी यहाँ पूछा जा सकता है। इसी तरह वज़ा करदा इंटरव्यू वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। ताकीदी इंटरव्यू जो अभी मैंने बयान किया है, तो जिसमें गुस्सा दिलाना या खुशी दिलाना, किसी के जज़्बात को वो
बरांगेख्ता करने के बाद उसे पहचानना कि ये अपने रवैये पर कितना काबू रख सकता है, इस तरह का सवाल भी किया जा सकता है। लेकिन जो तरीक़ाकार यहाँ पे मौजूद है वो है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में 3 या 4 या इससे ज़्यादा अफ़राद जो है इंटरव्यू लेते हैं, और पैनल तरीक़ाकार को अमूमन जो है सरकारी दायरा इख्तियार में इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट दायरा कार में बहुत कम इस्तेमाल होता है। पैनल तकनीक जो है ये उम्मीदवार की ज़्यादा जामे तहकीक करने और इनफरादी कारकर्दगी की वजाहत को बआसानी सामने लाने के लिए किया जाता है। इसमें जो 3-4 अफ़राद बैठे होते हैं, हर फ़र्द अपने सब्जेक्ट और अपने मौज़ू के मुतालिक सवालात करता है। मसलन अगर अरबी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसमें एक नहव के बारे में पूछेगा, और दूसरा अदब के बारे में पूछेगा, तीसरा तारीख़ के बारे में पूछेगा। तो ये इससे कम वक़्त के अंदर जो है उम्मीदवार की सलाहियतों को सामने लाया जा सकता है इस पैनल इंटरव्यू के ज़रिए। और जो पीपीएससी का तरीक़ाकार है वो यही पैनल इंटरव्यू वाला तरीक़ाकार है। तो इसमें ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाले के तासुरात और उसका जो ज़ाती रुझान और मेलान होता है, वो पहले ही पूछ लिया जाता है। बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं पूछते। इसमें बाज़ दफ़ा आपसे पूछ लेंगे कि आप अरबी का इंटरव्यू देने आए हैं, तो अरबी के इंटरव्यू देने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अरबी के किस मौज़ू के अंदर ज़्यादा आपके पास सलाहियत है, नहव में, सर्फ़ में, अदब में, तारीख़ में, बलागत में। तो ये जितने मौज़ूआत अरबी के अंदर आते हैं उसमें से कोई भी एक आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आप बताएँगे कि मुझे इसके अंदर उबूर है, तो उस मौज़ू के बारे में आपसे ज़्यादा सवालात किए जाएँगे। अच्छा, ये तो अक़साम हो गई इंटरव्यू की। तो उसके बाद है कि हम जो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, तो अब आते हैं सवालात की तरफ। वहाँ पे किस तरह के सवालात जो हैं मुमकिन है। सबसे पहले तो गैर कानूनी सवालात, बहुत अजीब सी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कि गैर कानूनी सवालात, यानी गैर कानूनी सवालात भी होते हैं इंटरव्यू के दौरान। जी बिल्कुल, गैर कानूनी सवालात भी वहाँ पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवालात जिनके जवाब की ज़रूरत ना हो, उसे गैर कानूनी कहते हैं। ऐसे सवालात इंटरव्यू की दुनिया में गैर कानूनी कहलाते हैं, जिनका जवाब देना इंतहाई ज़रूरी ना हो। ऐसे सवालात इंटरव्यू लेने वाले को पूछने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी-कभार इंटरव्यू लेने वाला ऐसे सवालात पूछ लेता है। उसमें ये होता है कि अब उम्मीदवार का फ़र्ज़ ये है कि वो खुद से अंदाज़ा लगाए कि ये जो सवाल मुझसे किया जा रहा है, आया कि इस सवाल का जवाब देने से मेरे इंटरव्यू पर सही असर पड़ेगा या इसका बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो उम्मीदवार है वो मौके और मुनासिबत जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला है उसकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक जवाब देगा कि ऐसा सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। उसमें मैं कुछ सवालात ऐड करना चाहूँगा कि किस तरह के सवालात जो हैं गैर कानूनी कहे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मुमकिन है आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी उम्र क्या है। तो ये फीमेल के लिए ये सवाल या वैसे भी ये ज़ाती तौर पे ये सवाल होता है, तो ये सवाल आम तौर पे तो इसका जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ये भी गैर कानूनी सवालात के अंदर आता है, यानी ऐसे सवालात के अंदर आता है जो सवालात इंटरव्यू को लेने वाले को नहीं पूछने चाहिए। इसी तरह एक और सवाल जो मुनासिब नहीं है लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपकी शादी हो गई है या आपकी मंगनी हो गई है, इस तरह का सवाल। इसी तरह ये पूछ लेता है इंटरव्यू लेने वाला, आपका वज़न कितना है? अच्छा, ये पूछ लेता है कि आप के साथ कौन रहता है घर में? यानी आप घर में कितने अफ़राद रहते हैं? आप वालिदैन हैं या भाई-बहन, बच्चे, जो इस तरह के सवाल जो ज़ाती उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह आप के कितने बच्चे हैं? तो ये मतलब ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये थोड़े से जो हैं ऐसे सवालात हैं जो सवालात इंटरव्यू के दौरान एक उम्मीदवार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उसको उम्मीद नहीं होती कि इस तरह का सवाल भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवालात भी किए जा सकते हैं। फिर उनका जवाब देने के लिए उम्मीदवार खुद सोचेगा कि इसका जवाब किस तरह देना चाहिए।
अच्छा, ये इस तरह का एक सवाल ये भी हो सकता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है आपके कितने बच्चे हैं? आप बताते हैं मेरे 3 बच्चे हैं। तो वहाँ सवाल हो जाएगा कि क्या आपने 3 बच्चों के बाद मनसूबाबंदी नहीं की? यानी इस तरह का सवाल जो आपकी ज़ात के साथ मुंसलिक होता है, नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछा जा सकता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जब आप काम पर होंगे, आपके अगर 2 बच्चे हैं घर में, आप काम करने जाते हैं, यानी इंटरव्यू जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने आए हुए हैं, ये लेक्चरर की जॉब है या तो फिर आपके बच्चों को पीछे कौन सँभालेगा? तो ये सवाल इस तरह का सवाल भी हो सकता है। तो यानी एक ज़हन बनाकर जाना चाहिए कि कोई भी सवाल जो कानूनी है या गैर कानूनी हमारे ज़ात के साथ मुंसलिक है या ज़ात से मुंसलिक नहीं है, वो पूछा जा सकता है। इसी तरह पूछा जा सकता है क्या आप किराए के मकान में रहते हैं या आपका अपना और ज़ाती मकान है, फिर किराया कितना है, ये भी पूछा जाए। तो ये सवालात जो हैं, ये असर करते हैं आपको जवाब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आप ये सवालात ज़हन में लेके जाएँ कि इस तरह के सवालात भी हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं किराए के मकान में नहीं रहता हूँ, तो इसका एक अलग असर है। अगर आप कहते हैं कि किराए के मकान में हम रहते हैं और हम इतना किराया पे करते हैं, तो इसका जवाब देने वाले के ऊपर एक अलग असर पड़ता है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कभी आपने चोरी की है? या इस तरह का सवाल होता है कभी आपको मुजरिमाना कोई आपका रिकॉर्ड है। तो ये तमाम सवालात जो हैं ये मैंने थोड़ी-सी मिसालें दी हैं इसमें, इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं सवाल। जो सवाल गैर मुनासिब मतलब आप उसे गैर मुनासिब समझ सकते हैं लेकिन इंटरव्यू लेने वाला के हाँ, वो मुनासिब होंगे। आपके ख़ानदान में आपके जो बैकग्राउंड है उसमें आपको लगेगा कि ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए था इसको, लेकिन वो वहाँ पे ये सवाल हो सकता है। तो इस तरह के सवालात को भी आप ज़हन में लेके जाएँगे। अच्छा, इन सवालात के जवाब देने वो तमाम तर इन्हिसार आपके ऊपर है, यानी उम्मीदवार पर है, वो कैसा रवैया अपनाता है। लेकिन ये है कि इसमें से किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आप ना कर सकते हैं कि मैं ये जवाब नहीं देना चाहता या ये मेरा ज़ाती उससे मुंसलिक है। लेकिन इसमें आप अपना रवैया ऐसा नहीं इख्तियार करेंगे कि आप वहाँ इंटरव्यू लेने वाले को ये नहीं कह सकते कि आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। चीज़ है कि नहीं पूछना चाहिए लेकिन आप ये कह दें कि सर सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये ना कहें कि आप ये पूछ नहीं सकते मुझसे। तो ये जो है आपका रवैया वहाँ पे और सलूक आपका जो है इंटरव्यू लेने वाला है को आप किस अंदाज़ में इसका जवाब देते हैं और किस तरह मुमकिन है कि आप अपना जवाब ना भी दें, उसे आप ला कहें, नहीं कहें लेकिन मुतमईन करें कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। ये जुमला भी आप ऐसे अंदाज़ में कहें कि अगला आपका सवाल का जवाब ना पाकर भी मुतमईन हो जाए, वो अगले सवाल पे चला जाए। लेकिन अगर आप वहाँ पे बरांगेख्ता हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे नागवारी महसूस होती है और अगला समझ जाता है कि ये जो मैंने सवाल किया है, ये सवाल इसके रवैये के ऊपर असरअंदाज हुआ है और जिससे ये थोड़ा गुस्सा इसके अंदर आया है या इसने किसी ऐसी हरकत का इज़हार किया है जो नामुनासिब है, तो आप वहाँ पे इस बात का इज़हार नहीं करेंगे कि ये सवाल नामुनासिब है। आप सिर्फ़ इस बात का इज़हार करेंगे कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता या मेरे अंदर इतनी वो नहीं है, वुसअत नहीं है कि इसका मैं जवाब दे सकूँ। आपने अपना सवाल ठीक पूछा है। तो ये आज के इसमें इंटरव्यू का मतलब हो गया, इंटरव्यू की अक़साम हो गईं और इंटरव्यू के अंदर किस तरह के सवालात का इम्कान रहता है, ये सवाल और ये हमने पैनल इंटरव्यू और ये ताकीदी इंटरव्यू वगैरह ये हमने आपने सुन लिया है इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इंटरव्यू के दिन आपको वहाँ पे किस तरह हाज़िरी देनी चाहिए और आप वहाँ इंटरव्यू के दौरान वहाँ पे आपकी हरकत किस तरह होनी चाहिए, इंटरव्यू के दौरान आप कमरा इंटरव्यू में दाखिल किस तरह होंगे, वहाँ पे बैठेंगे किस तरह और दौरान इंटरव्यू आप क्या करेंगे और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ और इसमें ये जो हिदायत हैं, ये तमाम जो बातें हैं, ये वीडियोज़ के अंदर, ये मतलब ये हतमी इस हवाले से तो हतमी है कि ऐसा हो सकता है।
ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے حتمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ جو ہدایات ہیں، اگر یہ ہدایات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں گی تو یہ آپ کو انٹرویو کے دوران مفید ثابت ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ انٹرویو کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کمرہ امتحان میں کس طرح داخل ہونا چاہیے، کس طرح انٹرویو دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔